Spirituality, Health, Inner Values Academy welcomes you, and we have Neha Patel with us. She's a yoga instructor practicing herself since 10 years, and now she takes batches also. Since last 6 years, she is taking the batches, or she is making learn to people. They are practicing with her, getting healed through yoga and asanas. And myself, I am Kajal Bachawat and practicing psychoneurobics since last 10 to 11 years. And now we have starting the batches and giving a detailed knowledge about what is psychoneurobics and how can we live a disease free life. So today we are here to have a discussion on what is psychoneurobics and science behind it. So we welcome Neha Patel and we'll start off with the discussion as she has some questions about this science. So we will start with it. Yes. Yes, Neha ji. I'm Neha Patel, a yoga instructor, and I am working since 10 years. Yeah, so it has always kept me healthy and happy. But then, when I heard about this, I was eager to know more about the chakras and all. Yes. Okay. So basically, psychoneurobics is a science about energy centers. What we in a very simple language we say कि जो चक्रस को बोलते हैं that is a very simple language concept. तो energy centers, there are 7 energy centers in our body, right? So ये energy centers अलग 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 कलर्स के होते हैं. लाइक चक्रस ऑन अ वेरी सिंपल टर्म वी कैन टॉक अबाउट कि अलग अलग 7 कलर के 7 चक्रस है जो अलग अलग इमोशन से, अलग अलग बॉडी पार्ट से, अलग अलग चीजों से रिलेटेड है. और एनर्जी सेंटर्स में जब एनर्जी डिप्लीट होती है या कम होती है और वी हैव अ लैक ऑफ एनर्जीज इन आवर एनर्जी सेंटर्स, देन वी गेट सम काइंड ऑफ इलनेस और डिजीज इन आवर बॉडी. सो द कॉन्सेप्ट है कि हम साइकोन्यूरोबिक्स की एक्सरसाइज और मेडिटेशंस के द्वारा वो एनर्जी सेंटर्स में वी कॉन्शियसली फिल दैट एनर्जी सेंटर्स विद द एनर्जी, with the divine energy, with the help of meditations and exercise. So energy centers में जब एनर्जी पूरी हो जाती है, जब वो सेंटर्स एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, सो फिजिकल लेवल पे हमारी जो डिजीज या इलनेसेस होती है वो हील होना शुरू हो जाती है. As we practice for long, we will completely get cured and healed through this science about it. Yes. Where are these energy centers located? Energy centers are located, see, these energy centers are basically, first we can say is कि it is invisible, they are not visible. Like ऊर्जा जैसे है, जो डिवाइन ऊर्जा है, जैसे हमारी खुद की आत्मा है या परमात्मा है, so it is invisible, right? Same way energy centers are also invisible, but it is there because ये कोई नया साइंस नहीं है, ये 5000 पुराना साइंस है. हमारे इंडियन कल्चर में, इंडिया में तो हमेशा से ही था. एंड इट आर एनर्जी सेंटर्स आर लोकेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्पाइन टिल आवर हेड. लाइक स्पाइन के बेस में हमारा मूलाधार चक्र होता है, दैट इज रिलेटेड टू द बोन्स एंड मसल्स ऑफ आवर बॉडी. इट इज रिलेटेड टू द विल पावर ऑफ आवर बॉडी. देन सेकेंड चक्र इज स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि से 2 उंगली नीचे होता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द प्योरिटी ब्लड in our body. Then it is Manipur chakra, which is related to the digestive system, and emotional level we can say it is related to the joy of our body, of our mental state. और वो नाभि के 2 उंगली ऊपर होता है. मणिपुर चक्र नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है, that is yellow in color again. Then there is a heart chakra, उसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, हार्ट के बिल्कुल पास एकदम सेंटर में, and it is related to love, unconditional love we can say. Any disease related to heart is cured through this center, this energy center.
Then there is a throat chakra जिसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, and it is over throat, यहाँ पे गले पे ही होता है. It is related to the thyroid problems, ENT problems. कई बार होता है इमोशनल लेवल पे कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हम कह नहीं पाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन के विशुद्धि चक्र वीक है उनका. And then it is third eye chakra, that is over here between the two eyes, and that is we call ajna chakra, although that is related to the wisdom, and it is related to the eyes and nervous system, brain, any problem related to the brain and nervous system, eyes. Yes, and then last is the crown chakra. Crown chakra is over here, head, and there is 1,000 petals, and it is completely called. We are into a blissful state, and bodily, like physically, it is like anything related to nervous system entirely. Any problem related to nervous system, we are highly depressed, and all these things are there. So this chakra is completely related to this. So these are 7 chakras, and illnesses or body parts and all these things are related to these energy centers, and as if we feel that energy centers, we can cure, and we can reach to the higher levels of our life, what we call is at a journey of our life. ये अगर हमको दिखते नहीं है चक्कर्स, ठीक है, फिर हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमको हील कर रहे हैं कि नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा? सी चक्र आज अब जैसे कहते हैं कि लाइफ फोर्स है हमारा, सी तो लाइफ फोर्स भी हमको दिखता नहीं है. हमारी बॉडी और एक लिविंग बॉडी में और एक डेड बॉडी में क्या फर्क होता है? सारे बॉडी पार्ट्स है उसमें, राइट. द ओनली डिफरेंस इज वो लाइफ फोर्स नहीं है. ओनली डिफरेंस इज, अगर इजी भाषा में कहूँ तो आत्मा नहीं है. एक लिविंग बॉडी में क्या फर्क है? आत्मा नहीं है. सो दैट इज अ लाइफ फोर्स. सो सेम वे एनर्जी सेंटर्स दिखते नहीं है, ठीक है. वो कैसे पता चलेगा कि हील होते हैं? जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हो. सी ये एक्सरसाइज जो साइकोन्यूरोबिक्स है वो 4 साइंस से बेस्ड है. So first science is color therapy. It is related to color, where we are doing the exercise concentrating on color. Then it is a mudra therapy, what we call कि हमारे हाथों के उंगलियों के टिप पे there are 5 elements of our body, and when we do some kind of mudra, that element in our body is getting balanced, right. Then it is sound therapy. हर energy center का एक sound है, we can call it at a mantras also, and we are using that mantra through exercise. And fourth is thought therapy. Thought is like affirmations. In a very simple way we can say कि it is an affirmations कि we are thinking. Suppose I say कि Muladhara chakra is weak and it is related to willpower, so we give a thought कि I am powerful soul and my willpower is strong enough to face any situations in the life. So these are 4 sciences. जब हम साइकोन्यूरोबिक्स की एक्सरसाइज और मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो ये जब 4 साइंसेस को मिक्स करके एक एक्सरसाइज बनाई गई है, जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, विद इन 7 डेज आपको इमोशनल लेवल पे चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल लाइफ में वी फील समटाइम्स वी फील वेरी इरिटेटेड, very frustrated. We start feeling somehow, somewhere we are positive. Sometimes we become negative. Like after having so much knowledge, also we are on the both the mode. We are positive also, we are negative also. So जब हम ये exercise करते हैं ना, हमारे emotional level पे हमको differences दिखना शुरू हो जाता है. फिर when we become emotional level पे जब हम difference दिखना शुरू होगा, हमको पता चले या नहीं चले, but then this science work. और धीरे धीरे you start getting आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा कि लाइक आप इरिटेट होते थे, अब इरिटेट नहीं होते. सम सिचुएशंस जो रिपीटिव होती है तो हमारा रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, एंड दैट वाज नॉट हैपनिंग. यू बिकम मोर साइलेंट, पीसफुल. एंड नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करने से अगर आपको कोई इलनेस है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट. सो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो इलनेसेस भी धीरे धीरे अंदर लेवल पे क्योर होने लग जाएगी. सपोज यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइजेशन,
or you are taking the pills. So okay, you take the pills. See, it is not an option for a pills, it is a supplement. pills लेते जाइए आप, दवाई जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर्स ने, कीप टेकिंग इट, लेकिन साथ साथ में ये करते जाइए, हीलिंग्स बहुत फास्ट हो जाएगी आपको, लाइफ लॉन्ग हमको पिल्स नहीं लेनी पड़ती है। और आपका अगर वो मणिपुर चक्र ही हील हो गया, पूरा एनर्जी से भरपूर हो गया, तो उसके रिलेटेड कोई बीमारी नहीं रहेगी। it works like this. आप जो अभी कई बार बोल रहे हैं एक्सरसाइजेज, तो ये एक्सरसाइजेज मतलब हमको आसन पे बैठ के करनी है या कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है जैसे हम योगा के आसन होते हैं? नहीं, it is not a physical exercise, it is a exercise through mind. Psychoneurobics means, psycho means it is an exercise through mind, where like suppose we are sitting here and we are taking a mudra. Suppose Muladhara chakra ki ye shivling mudra hai, so we are taking a mudra, we are closing our eyes and we are concentrating on red color in our mind, right? And there is a swar called lung, la ke upar dot lung, and we inhale and exhale, और exhale करने के time पे we are using that mantra. So that is neurobics exercise. And then there is a neurobics meditation also, where we call neurobics spa, and it is a meditation where we are concentrating on all the colors and we are meditating over it. जब ये सुना है कई जगहों पर कि इसको, आपने जैसे उसको लंग बोला, मूलाधार का लंग है, राइट? तो कई जगह पर ऐसे सुना है लम, तो कौन सा सही होता है? लंग सही होता है या लम सही होता है? सी एक्चुअली सबके मैं ये नहीं कहूंगी कि लम गलत होता है, लेकिन जो भी साइंस इसको फॉलो कर रहे हैं, सो दे हैव देयर ओन साइंस। उनका पूरा साइंस पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आ सकता है कि व्हाई दे आर यूजिंग लम। एंड जैसे ये जो थियरी, हमारी जो साइकोन्यूरोबिक्स की थियरी है, इन दैट वी यूज लंग, सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, और बरसों से ऐसे ही चला आ रहा है। सो नाइदर इज रॉन्ग, नाइदर लंग इज रॉन्ग, नाइदर लम इज रॉन्ग। लेकिन लम का क्या, वो जो भी साइंस से फॉलो करते हुए जो भी ये फॉलो कर रहे हैं, तो देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट। So I would not comment anything over it. If all the sciences, जब आप thoroughly किसी भी चीज को follow करते हो ना, तो that will definitely work. तो ये कितने दिन तक प्रैक्टिस करना चाहिए? See, basically कितने दिन तक प्रैक्टिस करनी है ऐसा नहीं है, बिकॉज ये एनर्जी सेंटर्स है, तो एनर्जी इज व्हाट इज द एनर्जी? अ कनेक्शन टू डिवाइन, ठीक है। अब आप कनेक्शन टू डिवाइन, पहले क्या था, जब थोड़े सालों से पहले जब मेरे ग्रैंड मदर और वो सब प्रैक्टिस करते थे, तो वो लोग सुबह जल्दी उठ के, एक उनका रूटीन था प्रेयर करना, एंड देन दे यूज टू सिट फॉर हाफ एन आवर और समथिंग, दे यूज टू डू समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। बट समहाउ हमारा आजकल का दिनचर्या ऐसा हो गया है कि वी आर अनेबल टू प्रैक्टिस दिस थिंग। सो ये ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने दिन करना, ये तो एक रूटीन का हिस्सा बनाना है, बिकॉज इट इज अ कनेक्शन टू डिवाइन। एनर्जी सेंटर्स में क्या होता है ना, कि हमारे थॉट्स के ऊपर से एनर्जी कम और ज्यादा होती रहती है। इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, इफ यू आर ऑल टाइम पॉजिटिव, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, तो वो एनर्जी आपकी पर्याप्त है। लेकिन समहाउ हमारे आसपास के सिचुएशंस कभी हमारे विरुद्ध जाते हैं या हमारे फेवरेबल नहीं होते, तो समहाउ वी बिकम नेगेटिव, एंड दैट नेगेटिव थॉट्स एंड दैट नेगेटिव एनर्जी हमारे एनर्जी सेंटर्स में एनर्जी को कम करते हैं। तो अब एनर्जी भरने का तरीका क्या होगा? मेडिटेशन इज वन वेरी पावरफुल वे, या न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज, या आप कोई रीडिंग करो, या आप कोई भी तरह का मेडिटेशन करो, दैट इज अ वन वे टू रीफिल दैट एनर्जी सेंटर्स। Either you are 24 hours super positive and emotionally balanced, then you don't need because आप 24 hour meditations में हो, because you are emotionally balanced and positive, so ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी आपके एनर्जी सेंटर्स में एनर्जी भर रही है। लेकिन सिचुएशंस वेरी करती है और हमारा इमोशनल लेवल भी वेरी करता रहता है, तो एनर्जी सेंटर्स में भी एनर्जी कम बेसी होती रहती है।
सो अगर वो कम हुई, अगर सपोज आज मेरी लाइफ में आज के दिन में कुछ ऐसा सिचुएशन आया विच वॉज नॉट फेवरेबल टू मी, somehow I got disturbed, maybe for 10 minutes 15 minutes, फिर मैंने उसको रिचार्ज कैसे किया? तो जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कोई सिचुएशंस आए विच वाज नॉट फेवरेबल, तो जैसे अब हम लोग इतने सालों से प्रैक्टिस करते हैं, तो व्हाट वी डू, वी इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट इट, वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, और हम 2 मिनट साइलेंट में चले जाते हैं, दैट वे वी प्रैक्टिस, तो यू आर रीगेन द एनर्जी अगेन। लेकिन वो प्रैक्टिस में आना पड़ेगा आपको। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो, तो आपने थोड़े से नेगेटिव हुए तो वो मूड तो शाम तक चलेगा या 2-3 घंटे तक चलेगा, तो वो मूड को या तो ठीक कर लीजिए आप। अब वो मूड ठीक नहीं हो रहा है अगर, सो दिस इज अ वे वेयर हम एनर्जी सेंटर्स को एनर्जी से भरपूर कर सकते हैं। जब मूड ठीक ही नहीं हो रहा है तो ये हम कर नहीं पाएंगे, तो हम कैसे बैलेंस करें? जब आप साइकोनेरोबिक्स का प्रैक्टिस करोगे ना, तो एनर्जी नॉन स्टॉप आएगी उसमें। जब एनर्जी सेंटर से भरपूर होंगे आप, एनर्जी से आप जब भरपूर होंगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ पहले। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग एनर्जी से भरपूर होते हैं। कभी उनको देखा है मूड खराब हुआ, अगर उनका किसी फ्रेंड से, भाई से, बहन से झगड़ा हो गया ना, तुरंत खेलने चले जाएंगे, दे डोंट रिमेम्बर मूड ठीक। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी से भरपूर है। जब हम भी एनर्जी से भरपूर होगा ना, तो हमारा भी ज्यादा देर तक हम नेगेटिव नहीं रह पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव हो जाएंगे। सो क्योंकि वो एनर्जी से भरपूर रहेंगे हम, सो इट वर्क्स दैट वे ऑल्सो। ये तो अच्छा जानने मिला मेरे को। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि दिन में कौन से टाइम पे करना चाहिए? कोई भी टाइम पे हम कर सकते हैं? Yes, absolutely. You can do at any time, but I would suggest कि हम एक टाइम फिक्स रखें। क्यों? क्योंकि अगर आप सुबह, सपोज यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग, आप 6:30 बजे करते हो सपोज, सो आई वुड रिकमेंड कि हम एक ही टाइम फिक्स रखें। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड और हमारा बॉडी भी हमको वो टाइम पे सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे माइंड को ये समझ में आता है, हाँ भाई 6:30 बजे मतलब मुझे ये करना है, राइट। अब जैसे ऑफिस जाते हैं हम, या हम बाहर काम से एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं, तो हमारा बॉडी ट्रेंड हो जाता है उस टाइम के लिए कि भाई 9:30 बजे या 10 बजे तो अब ऑफिस का टाइम हो गया, तो यू आर एक्टिव। अब रात को 10 बजे हैं और मैं रोज 10 बजे सोती हूँ, तो माई बॉडी इज इन द स्लीपिंग मोड। अब मैं जगूंगी भी ना, तो भी मेरा बॉडी एकदम स्लीपिंग मोड में रहेगा। तो सेम वे अगर हम एक ही टाइम फिक्स रखें, तो हमारा बॉडी और माइंड भी हमको सपोर्ट करेगा कि हमको ये हमारा मेडिटेशन का टाइम है। सो वो डीपर लेवल में जाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैं जैसे है, मेरा जैसे है, तो मैं आफ्टरनून्स में फ्री होती हूँ, तो मैं उसको आफ्टरनून्स में कर सकती हूँ, या इसको एब्सोल्युटली। मॉर्निंग में ही करना चाहिए, इवनिंग में ही करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, यू कैन डू इन आफ्टरनून, यू कैन डू इन इवनिंग, you can do at night, any time you can do it. It is not necessary you have to do it in the morning only. You can do it at any time, any number of time. You can do twice, thrice. If you have illness, you do it twice, thrice. एक एक जो बीज मंत्र है, उसको कितनी बार रिपीट करना चाहिए? Starting में 11 times. एवरी चक्र, एक एवरी बीज मंत्र? एवरी मंत्र, देयर आर 7 मंत्र, 7 मंत्र, हर मंत्र आपको 11 बार मिनिमम करना है। स्टार्टिंग में 11 टाइम एटलीस्ट। वंस यू हैव डन फॉर 1 मंथ अप्रॉक्स, देन यू कैन डू इट फॉर 7 टाइम्स। बट इतना टाइम करना चाहिए। लाइक आज भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो आई ट्राई एंड डू 11 टाइम्स एवरी डे। नहीं तो टाइम अगर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आई डू 7 टाइम्स ऑल्सो। बट 7 टाइम्स भी एक बार कर लेना चाहिए। Absolutely, absolutely. 7 times is absolutely needed to get into that energy. हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ दिनों तक नहीं कर पाए, तो Meditations तो आप कर ही सकते हैं। मेडिटेशन इज गोइंग इन टू अ साइलेंस। आप ट्रैवल करते हैं ना, तो कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। भी हमारा जो डेली रूटीन है, सपोज आप योगा करवाते हैं, तो आप अपनी जो प्रैक्टिस करते होंगे वो तो कर ही लेते होंगे। तो दिस इज हैज टू बी अ पार्ट ऑफ अ रूटीन। जैसे फॉर वेरी एकदम कॉमन एग्जांपल, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो सपोज मेरी रीडिंग की प्रैक्टिस है, तो मैं रीडिंग नहीं छोड़ती हूँ, मैं खाना पीना नहीं छोड़ती हूँ। हम कोई भी रूटीन चीजें जो हम करते हैं ना, वो नहीं छोड़ते।
तो आई अग्री कि शायद हम किसी और के घर में हैं, तो हम शायद वो स्वर वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाए, लेकिन हम मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं, बिकॉज इट इज ओनली गोइंग इन टू अ साइलेंट। सुबह आप उठ रहे हो तो 15-20 मिनट जल्दी उठ के वो हम कर तो सकते ही हैं, अच्छा, राइट? इट जब इज अ हम फूड टू अ सोल। फूड टू आवर सोल। एब्सोल्युटली। ओके फाइन। वन मोर थिंग, अगर हम हेल्दी है, फिट है, तो हमको ये कितनी बार करना चाहिए, और जो बीमार है उनको कितनी बार करना चाहिए? अगर हेल्दी हो, आप फिट हो, यू हैव नो इलनेसेस इन योर बॉडी, देन आपकी उम्र जितनी है उतने मिनट आपको करना ही चाहिए। हेल्दी पर्सन को। यस यस, एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट द इल पर्सन देन? if a person is having any kind of a illness, depends उनको क्या illness है, yet if a person is having any kind of illness, at least 2 times, अगर बड़ी बीमारी है तो 3 times you should do it। क्योंकि सी नॉर्मल को रहने के लिए, आपका एक एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए उतने मिनट का मेडिटेशन इज नीडेड। व्हेन यू हैव सम इलनेसेस, तो आपके एनर्जी नर्व्स में, एनर्जी नाड़ियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो आपको वो एनर्जीज का बहाव ज्यादा चाहिए, तो उसको डबल द टाइम करिए। यू हैव टाइम, यू हैव मोर प्रॉब्लम्स, यू डू 3 times, 4 times, देयर इज नो लिमिट टू इट। यू, आपको जितना जल्दी ठीक होना है, आपको चाहिए कि भाई मेरे को जल्द से जल्द ठीक होना है, आपको कोई तरह की बीमारी है, मेरे को अब इसको खत्म ही करना है, यू डू 3 times, 4 times, यू हैव टाइम, यू डू इट 3 times, 4 times, एनी टाइम। ठीक है, ये जब हम खुद कर रहे हैं तब ठीक है कि हम हमारा कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन जैसे आपके पास हम सीखने आए हैं और आप मुझे सिखा रहे हो, एंड कहीं मैं बीच में सो जाऊं, जैसे मेडिटेशन करते करते सो जाऊं, या थकान के वजह से शायद मैं करते करते सो जाऊं, तो ये कैसे फिर रिएक्ट होगा इसका? सी, सबसे पहले जब मेडिटेशंस में बैठते हैं ना, तो सो जाना, कई बार हमको लगता है कि हमको सुनाई नहीं दिया एंड वी कॉन्शियसली नेम इट कि हम सो गए, लेकिन शायद हम डीपर लेवल में चले गए, फर्स्ट थिंग, राइट? सेकेंड, अगर हम सो जाते हैं तो इट इज ऑलवेज सेट कि कॉन्शियस लेवल पे हम सो गए, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज एक्टिव 24 hours। सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वो नॉलेज ले ही रहा है, वो एनर्जी तो ले ही रहा है, सो दैट इज ऑलवेज वर्किंग, राइट? बट जनरली होता है जब नया नया प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम बहुत थक गए हैं, सो हमको 10 मिनट आवाज सुनाई देती है, फिर 2 4 5 मिनट ऐसा होता है कि हमको आवाज सुना ही नहीं थी, एंड वी फील के आई स्लेप्ट, बट इट्स नॉट दैट वे, यू गो इन टू द डीपर लेवल ऑफ मेडिटेशन, सो वी नेम इट के यू स्लेप्ट। We might say कि you went to a subconscious level of a meditation, sometimes we say कि we went into an alpha level of a meditation, so that is also there। ये बच्चे भी कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बच्चे भी कर सकते हैं, एंड इट इज रियली गुड इफ दे डू इट। मेडिटेशंस इज अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर ये न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी है, और बच्चे करें ना तो उनकी क्रिएटिविटी, उनके माइंड के लेवल्स, एंड दे कैन डू वंडर्स, क्योंकि वो अगर एनर्जी से भरपूर जब होते हैं, then they can definitely create great things whatever they want to do। उनके अगर वो एकेडमिक में जैसे पढ़ाई करे और कुछ करे नहीं करे, तो उनके मेमोरीज बहुत अच्छे हो जाती है, और वो वैल्यूज से भरपूर की है, तो वो जन्म तो उनका वैसे ही हुआ है कि they have a very good memory, they have a creative mind, and they are good at heart, they are full of love, and all the values related to the 7 chakras are already there। लेकिन वो कुछ सिचुएशन सम वो कम बेसी होता रहता है, बट देन इफ दे डू एक्सरसाइज, दिस न्यूरोबिक एक्सरसाइज बहुत इजी है, बच्चे भी कर सकते हैं, एंड इफ दे डू इट, दे विल डेफिनेटली, दे विल बी इनटू देयर रियल वैल्यूज। ओके फाइन। एक लास्ट क्वेश्चन है कि टीनेजर्स जो है उनको आजकल बहुत सारी बुरी आदतों की ये हो जाती है, लत लग जाती है, एडिक्टिव हो जाते हैं बहुत सारी चीजों से, जैसे स्मोकिंग है या ड्रिंक है, या तो ये एक्सरसाइजेस करवाने से उनका रिजल्ट कैसा होगा? मतलब वो छोड़ पाएंगे ये सब चीजें कि नहीं छोड़ पाएंगे? एब्सोल्युटली छोड़ पाएंगे। सी, आई मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे वी कैन इन अ वेरी कॉमन एग्जांपल, एक वेसल है, राइट? हाँ। उसमें वेसल में मिट्टी वाला पानी और साफ पानी साथ नहीं रह सकता,
right? Suppose my mind is there, so I can be either grateful to the divine or I can be either complaining to the divine. Both cannot be together. Same way, positive and negative energy cannot be together. अगर हम पॉजिटिव एनर्जी का इनटेक कर रहे हैं तो नेगेटिव छूट ही जाएगा. Okay. एब्सोल्युटली, एक सीधा सा है. और मेडिटेशन से यू आर गेटिंग, आई कैनॉट गिव यू कि कैसे, मतलब हम बोलते हैं एनर्जी का शावर ले रहे हैं, वो इतना ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ रहा है, तो नेगेटिव कैसे टिकेगा? वो पूरा उसी से भरपूर हो जाएगा, तो वो तो निकलेगा ही. इट इज दैट वे. Thank you so much. इतनी जानकारी आपने दे दी है मुझे इस बारे में कि अब मैं ईगर्ड हूँ इसको लर्न करने के लिए. That's wonderful. That's really wonderful. So thanks a lot, Neha ji. Thanks a lot for this wonderful session. This wonderful message. Thank you. Thanks a lot. We will be starting the batches soon, so I'll let you know. And it's great to have a yoga instructor learning the psychoneurologics as well. And I hope you can, add to your sessions also, as it is through yoga. Also, you are doing the great jobs of healing. I have heard about through you only. I have heard okay, how people are getting healed through some disease. So definitely, it will be helpful. This is going to be a topic for them. Obviously. Anyways, thank you. Thanks a lot. So much. Thank you. Yeah.